Hello class 8. Let's look into chapter 3, which is indices and cube root. What you have already learned. These things you have already learned in your previous standard. The law of indices. So let's quickly revise it. A raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. So taking the example 3 raised to 5 into 3 raised to 2 will give me 3 raised to 5 plus 2. 3 raised to 5 plus 2, that is equal to 3 raised to 7. The next formula is a raised to m divided by a raised to n. So whenever it is division, we do the subtraction between the powers. So a raised to m minus n हो जाएगा. So 3 raised to 7 divided by 3 raised to 9 will be now 3 raised to 7 minus 9, that is equal to 3 raised to minus 2. A into b raised to m equal a raised to m into b raised to m. मतलब ये m जो पावर है वो दोनों को भी अप्लाई होगा a and b को. So here 5 into 7 raised the whole raised to 2. So this power 2 belongs to 5 also and 7 also. तो हम लिख देंगे 5 raised to 2 into 7 raised to 2. Let's move forward to the rest of the formulas. Whenever it is a raised to 0 equal 1, whenever it is a raised to 0, it is always equal to 1. So 5 raised to 0 is equal to 1. A raised to minus m negative power is equal to 1 upon a raised to m. Whenever it is a negative power minus m, I can write 1 upon a raised to m. So 5 raised to minus 3 है, minus 3 है, इसके लिए I can write 1 upon 5 raised to 3 and make this power as positive. To make this minus 3 as power positive 5 raised to 3, I will have to write 1 upon 5 raised to 3. Whenever it is a raised to m the whole raised to n, so I can multiply the powers up. So m into n I can write. So a raised to m into n. So take an example 3 raised to 4 the whole raised to 5. So it can be written as 3 raised to 4 into 5. So 4 5s it is 20. So it will be equal to 3 raised to 20. Okay, let's move to the next formula and the sum related to it. A upon b raised to minus m can be written as b upon a raised to m. Means that if there is a negative index or power there, so you can make it positive by reversing the numerator and denominator within. मतलब ये जो अंदर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसको चेंज कर दो तो आप पावर का साइन भी चेंज कर सकते हो. तो 5 अपॉन 7 रेस टू माइनस 3 जो है वो उसे हम लिख सकते हैं. अगर उसे माइनस 3 को हमें 3 लिखना है तो 5 अपॉन 7 को हमें अंदर साइड में 7 अपॉन 5 करना होगा. एंड देन a अपॉन b रेस टू m कैन बी रिटन एज, ये जो m है वो हम दोनों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे ये डिवीजन में भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो a रेस टू m लिख सकते हैं अपॉन b रेस टू m. तो ये 5 अपॉन 7 रेस टू 3 जो है उसे हम लिख देंगे 5 रेस टू 3 अपॉन 7 रेस टू 3. ओके, सो दिस वाज द थिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, meaning of numbers with rational indices. So what is this part? It means कोई भी nth root अगर है a का तो we can write it as a raised to 1 by n. nth root है जैसे square root हुआ, cube root, fourth root, fifth root of a रहेगा तो we can write it as a raised to 1 upon n. जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ क्यूब रूट ऑफ a है तो क्यूब रूट ऑफ a को हम लोग ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट के अंदर हम a लिखते हो, क्यूब मतलब 3 तो रूट के यहाँ पे 3 लिखते हैं तो क्यूब रूट ऑफ a ऐसे है. तो अगर हमें रैशनल इंडाइसेस लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू 1 अपॉन 3. स्क्वायर रूट होगा तो हम लिख देंगे 1 अपॉन 2. फोर्थ रूट होगा तो हम लिख देंगे रेज टू 1 अपॉन 4 ऐसे. तो अगर ऐसे दिया हुआ है जैसे एग्जाम्पल
128 रेज टू 1/7, इसे हम रीड करेंगे कि ये 7th रूट है 128 का, 7th रूट ऑफ 128. If the next question 900 raised to 1/12, it means it is 12th root of 900. Let's start with practice set 3.1. तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 5th रूट ऑफ 13, तो 5th रूट ऑफ 13 को हम लिख सकते हैं 13 रेज टू 5th रूट है. 5th रूट मतलब 1/5, जैसे nth रूट बोला है 1/n, जैसे 5th रूट होगा 1/5, तो ये हो जाएगा 13 रेज टू 1/5. अभी है 8th रूट ऑफ 100. 8th रूट ऑफ 100 क्या होगा 100 एंड 8th रूट. 8th रूट मतलब 1/8, so the answer will be 100 raised to 1/8. so ऐसे ही आपको बाकी के सम सॉल्व करने हैं. फिर है राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. अभी यहाँ पे नंबर दिए, ये रिवर्स है, यहाँ पे वर्डिंग्स में दिया था और आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखना था, और यहाँ पे नंबर्स दिए हैं आपको nth रूट ऑफ a के फॉर्मेट में लिखना है. तो जैसे 81 रेज टू 1/4, 1/4 मतलब 4th रूट, तो मैंने लिखा 4th रूट ऑफ 81. तो वैसे ही 512 रेज टू 1/9 हो जाएगा 9th रूट ऑफ 512. होप आपको ये समझ में आई होगी. एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है. जनरली वी कैन एक्सप्रेस 2 मीनिंग्स ऑफ नंबर्स. अगर मेरा नंबर है a रेज टू m/n, तो इसे मैं 2 तरीके से लिख सकती हूँ, a रेज टू m रेज टू 1/n, या तो फिर a रेज टू 1/n पहले लिखकर फिर रेज टू m. तो अभी इसे रीड कैसे करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे ब्रैकेट ओपन करूँ या मल्टीप्लाई कर दूँ a रेज टू m इंटू n फॉर्मेट में है, तो मुझे मिल जाएगा m इंटू 1/n. m इंटू 1/n हो जाएगा m/n. तो इसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप a रेज टू m लिखकर फिर बाद में रेज टू 1/n लिखो, या तो आप a रेज टू 1/n पहले लिख दो और फिर बाद में रेज टू m लिखो. तो इसे रीड कैसे करेंगे, अगर 1/n बाहर है तो 1/n मतलब nth रूट, तो मैं लिखूंगी nth रूट ऑफ पावर है m, तो nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a. ये nth रूट है ऑफ m पावर ऑफ a, और ये हो जाएगा, ये m पावर है, तो m पावर ऑफ nth रूट ऑफ a. 1/n मतलब nth रूट. तो वैसे ही यहाँ पे फिर से देखते हैं, a रेज टू m रेज टू 1/n है, तो इसे हम बोलेंगे nth रूट ऑफ m th पावर ऑफ a, और ये हो जाएगा mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a. तो आई होप आपको ये समझ में आए रहेंगे 2 मीनिंग्स अगर आपका नंबर a रेज टू m/n है तो अभी हम एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं. टैबुलर फॉर्मेट में है ये आपका एक्सरसाइज. लेट्स सी, आपका नंबर है 225 रेज टू 3/2. जो अभी हमने 2 मीनिंग देखे नंबर्स को लिखने के, उसी के ऊपर बेस्ड है ये. पावर ऑफ द रूट या तो रूट ऑफ द पावर. अब इसे लिखते कैसे, लेट्स सी. द क्वेश्चन इज 225 रेज टू 3/2 बराबर. तो इसे मैं लिखूंगी, जो भी अपॉन में रहेगा वो आपका रूट रहेगा. तो 3/2 है, तो आप लिख दोगे ये क्यूब है, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर रहेगा वो आपका पावर देगा. तो 3 मतलब क्यूब, सो ये हो गया क्यूब ऑफ, फिर बाद में स्क्वायर रूट हो गया ऑफ 225. क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225. वैसे ये हो जाएगा 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45. क्यों, क्योंकि अपॉन 5 जो है वो आपका 5th रूट हो जाएगा, और जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो पावर में आ जाएगा, कंसीडर करेंगे हम. सो ये 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45. तो वैसे ये 81 रेज टू 6/7 का आंसर क्या हो जाएगा, 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81. अभी हम दूसरा तरीका देखते हैं जो कि रूट ऑफ पावर है, ये रिवर्स है. तो यहाँ पे हम पहले रूट को लिखेंगे फिर ऑफ पावर लिखेंगे. तो यहाँ पे रूट कौन सा रहेगा, स्क्वायर रूट.
तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें हमें पहले क्या लिखना है, रूट लिखना है। तो रूट के लिए अपॉन 5 है तो फिफ्थ रूट हो गया ये, तो हम लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45, जैसे लिखा लिखो फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। अब यहाँ पे भी पहले हमें रूट लिखना है, तो अपॉन 7 है तो ये क्या हो जाएगा सेवेंथ रूट, और ऊपर का क्या हो जाएगा सिक्स्थ पावर। तो हम कैसे लिखेंगे, सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 81। तो जैसे अभी देखो ये 45 रेज टू 4/5 था, इसे देखो ऐसे लिखा, तो ये रीड कैसे करता है, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45, और ये क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट है, तो ये हो गया फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप हमेशा ध्यान रखें कि जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो रूट वाला पार्ट होता है, और जो न्यूमरेटर है वो पावर वाला पार्ट होता है, तो फिर उस हिसाब से पावर ऑफ रूट और रूट ऑफ पावर आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का आगे का पार्ट, दैट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस के फॉर्मेट में लिखना है। तो इसे इसके आंसर्स लिखने की हम टेक्निक देखते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। सो फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो फिफ्थ रूट का मतलब होता है 1/5, तो फिफ्थ रूट हो गया ऑफ क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर भी हो गया यहाँ पे, ऑफ 264, तो ये लिख दिया 264। अब हमें और इससे कैसे लिख सकते हैं, 264 लिख देते हैं, और 2 इंटू 1/5 होता है 2/5, तो ये हो जाएगा रेज टू 2/5, तो हमारा आंसर हो गया 264 रेज टू 2/5। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। तो आप स्टार्टिंग से जाइए, क्यूब ऑफ बोला है तो आप लिख दो क्यूब ऑफ मतलब ब्रैकेट डाल दो, क्यूब ऑफ क्या, क्यूब रूट मतलब 1/3, तो ये हो गया क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3 1/3 इंटू 3 क्या होता है 3/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/3। तो जो हमारा आंसर है क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, तो वो लिखा जा सकता है 3/3/3। आई होप आपको समझ में आया होगा टेक्निक इसके आंसर्स लिखने का। अगर रैशनल इंडाइसेस पूछा गया है आपको तो कैसे नंबर्स लिखा जाएगा। ओके, नाउ इट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। कैसे क्यूब फाइंड करते हो, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे स्क्वायर बात करेंगे तो हम वही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे जब अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो हम वही नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, वी कॉल दैट एज क्यूब ऑफ द नंबर। सो क्यूब ऑफ द नंबर मतलब हमने उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। और जब क्यूब रूट निकालना है तो सेम फैक्टराइजेशन मेथड जो आप स्क्वायर रूट के लिए यूज करते थे वही यूज करोगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिया हुआ है, सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, देन वी कैन गो टू द एक्सरसाइज। सो इट इज फाइंड द क्यूब ऑफ 17। क्यूब ऑफ 17 मतलब 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो उसे हम लिखेंगे 17 क्यूब इज इक्वल टू 17 इंटू 17 इंटू 17। 17 क्यूब बोला, क्यूब ऑफ 17 मतलब 17 क्यूब, मतलब उसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 17 इंटू 17 इंटू 17 जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी मुझे आंसर मिलेगा 4913। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, ये क्यूब का एग्जाम्पल था, अब हम क्यूब रूट के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व एग्जाम्पल लिया है ताकि ऐसे एक सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में है, प्रैक्टिस सेट में है, जो आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.125। तो क्यूब रूट ऑफ 0.125, तो जब भी ऐसे डेसिमल नंबर्स होंगे आप डेसिमल को काउंट करके उसको अपॉन 100 या अपॉन 10 अपॉन 1000 के फॉर्मेट में लिख दो, फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख दो डेसिमल को। तो ये 0.125 मतलब कि पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 0 होते हैं 1000 में, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 1000, क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है तो अपॉन 1000 आ जाएगा। अब ये जो क्यूब रूट है वो कॉमन है 125 के लिए और 1000 के लिए,
तो मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ. तो आई हैव रिटन क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000. ये जो क्यूब रूट है वो दोनों को बांट दिया समझो. तो a अपॉन m रेज टू m इक्वल a रेज टू m अपॉन b रेज टू m. ये लॉ ऑफ इंडाइसेस के चलते ये हम कर पाए हैं. अब 125 मुझे पता है कि इट इज 5 का क्यूब एंड 1000 इज 10 का क्यूब, क्योंकि हमें बेसिकली 1 से 10 तक के क्यूब को तो याद रखना ही है. सो ये हो गया 5 क्यूब और ये हो गया 10 क्यूब. अब क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब का आंसर आ जाएगा 5 और क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब का आंसर 10 आ जाएगा. सो 5 अपॉन 10 को मैं लिख सकती हूँ 0.5. तो हमारा आंसर आएगा 0.5. ओके, नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 3.3. तो मैंने ऑलरेडी ये सम सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बोला है, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है. तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो है 729. तो पहले हम 729 को फैक्टराइज करेंगे. तो यहाँ पे ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 9 है. सो हमने 3 में देखा. सो 3 2s 6 और फिर बचा 1, 12 हुआ, 3 4s 12, 3 3s 9. ऐसे करके हमने इसे फैक्टराइज किया है और जो कुछ भी फैक्टर्स फैक्टराइज करने के बाद मिले हैं उसे मैंने ऐसे लिख दिया. तो 729 का मतलब होता है कि 3 3 3 3 6 टाइम्स है. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो हमें 3 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेना है. 3 नंबर्स को साथ में लिखना है क्योंकि हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं. सो आई राइट 3 इंटू 3 इंटू 3 को मैंने लिख दिया 3 क्यूब और फिर बाद में 3 इंटू 3 इंटू 3 को मैंने लिख दिया 3 क्यूब. अब जैसे ये क्यूब क्यूब है कॉमन, तो मैं क्या करती हूँ, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करके 3 इंटू 3 ब्रैकेट में लिखती हूँ और ये जो ऊपर का 3 है, पावर 3 है, वो कॉमन लिख देती हूँ. और ये सब किसकी वजह से हुआ, फॉर्मूला a रेज टू m इंटू b रेज टू m. तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू b लिख दो आप और फिर बाद में होल रेज टू m कर दो. तो मैंने भी 3 इंटू 3 लिख दिया और फिर बाद में रेज टू 3 कर दिया है. तो 3 इंटू 3 हो गया 9 और फिर 9 क्यूब. लेकिन मुझे 729 का तो बोला नहीं था. दे हैड आस्क्ड मी क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. सो हमें 729 का फैक्टर्स लिख के जल्दी से नहीं छोड़ना है, हमें क्यूब रूट ऑफ 729 लिखना है. तो क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729 क्या था, 9 क्यूब था. तो यहाँ पे क्यूब रूट है और क्यूब है तो हमें आंसर मिल गया कितना है, 9. सो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9. लेट्स मूव टू अनदर नंबर. ये नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है. नेगेटिव नंबर के क्यूब रूट के लिए कैसे कर सकते हैं, तो हमारा नंबर हम लोग पहले 512 ले लेते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं. तो यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन किया है, पूरा 512 2 के इसमें डिविजिबल होते जाएगा. अब ये 9 टाइम्स 2 आया है, सो मैंने 3 पेयर लिया. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एक बार एक पेयर बनाएंगे हम इसका, क्योंकि हमें 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है 3 नंबर्स का. यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये एक अदर कॉम्बिनेशन हो गया है और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तीसरा कॉम्बिनेशन. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब. बट हमारा क्वेश्चन तो 512 है नहीं, हमारा क्वेश्चन है -512. तो -512 के लिए नेगेटिव कब आएगा, जब नंबर्स भी अंदर के नेगेटिव होंगे, फैक्टर्स भी नेगेटिव होंगे. क्यूब रूट में नेगेटिव आंसर तब आता है जब उसके फैक्टर्स भी नेगेटिव हो. सो -2 क्यूब इंटू -2 क्यूब इंटू -2 क्यूब. सो यहाँ पे क्यूब 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 सारे कॉमन है, तो इसके लिए मैंने द होल क्यूब लिख दिया है और फिर अंदर मैंने लिखा है -2 इंटू -2 इंटू -2. तो ये -2 इंटू -2 4 इंटू -2 -8 का क्यूब. बट मुझे ये फैक्टर्स नहीं निकालना है, मुझे क्यूब रूट ऑफ -512 निकालना है. सो क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -512 क्या मिला था हमें, -8 क्यूब. तो यहाँ पे अंदर में मैंने -512 के जगह पे आई हैव रिटन -8 क्यूब. सो क्यूब रूट ऑफ -8 क्यूब हो जाएगा ओनली -8. आप जो है वो यहाँ पर माइनस न डालकर स्टार्टिंग से -512 लिख के यहाँ पे माइनस साइन पुट कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो वन
one way you can do. Coming to the last sum of this exercise, it is about simplify. हमें इसे solve करना है और वो है क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125. तो जैसे अभी क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125, तो मैं क्यूब रूट दोनों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. तो मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125. 27 होता है 3 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब. अगर अभी आप देखोगे तो यू कैन सी कि 3, that is cube root of 3 cube can be written as 3 and cube root of 5 cube can be written as 5. So the answer is 3 upon 5 for this sum. Okay, thank you so much. I hope you would have understood the entire chapter and you are going to practice the rest of the sums on your own. You can do it. Keep watching the videos and share with your friends for rest of the chapters.